वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे। गाँव को बताए रखना, रोशनी होगी, रोशनी जरूर होगी, चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। Good morning, ladies and gentlemen. We have gathered here today on this auspicious occasion of 77th Independence Day to celebrate the spirit of freedom and honor the sacrifices made by our brave ancestors. Let us all come together as one nation to remember and cherish the struggles that have brought us to the where we stand today. A nation that has braved numerous challenges and emerged stronger, united and resolute. We are privileged to be a part of this historic occasion. वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वे खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, जो आ सके देश के काम नहीं। वे खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, जो परवश होकर बहता है, वे खून नहीं है पानी है, वे खून नहीं है पानी है। A very fine and pleasant morning to Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, other dignitaries, all the teachers and my dear students. Today we are gathered over here to celebrate our 77th Independence Day. I, Surabhi Bhardwaj, wish you all a very happy Independence Day. Now is the time to welcome our guests. On behalf of our school, we will present a bunch of flowers and badges to welcome the Honorable Chief Guest and Guest of Honor. कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी। Once again, please put your hands together for the guests. शाम कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। Thank you, sir. Thank you for coming and sparing time for us. I am privileged and humbled to take this opportunity to introduce the chief guest of the day, Dr. Mahendra Singh, Associate Professor and Head of the Department History, Dayanand College, Hisar.
Sir, you have also been former and founder chairperson, Department of History and Archaeology, CDLU, Sirsa. Dr. Mahendra Singh's educational background is a strength. You have completed graduation, post-graduation in history and Doctor of Philosophy from the Kurukshetra University. As a member of Bharat Scout and Guides in 1996, you were honored with the coveted Shahid Rajpal DAV Literary Award in 2008 and the Vice President Award for Social Service. You are a well-respected educator who in 2006 was awarded the District Administration of Hisar's Best Teacher Appreciation Certificate. 5 MPhil students and 6 PhD students were guided by you, sir, in completing their research projects. Dr. Mahendra Singh's accomplishments go beyond his scholarship. You have more than 65 research papers to your name, which have been printed in journals from all over the world. 4 National History Department lectures were coordinated by you. You have also completed 2 small-scale UGC-funded research projects. You have 7 years of experience as a program officer. We at Thakur Das Bhargav Senior Secondary Model School are fortunate to have Dr. Mahendra Singh among us on this spectacular day. Thank you, sir. Please put your hands together for the chief guest. As we gather here today, I would like to introduce Shri Jagdeep Bhargav, Honorable Secretary, School Managing Committee, a person of remarkable stature and accomplishment. This individual's journey is an inspiring saga of dedication, determination and outstanding contributions to education field. A true embodiment of excellence, our guest of honor's achievements have left an embodiment of excellence. Our guest of honor's achievements have left indelible mark on us. Beyond their professional accomplishments, our guest of honor is known for their humility, leadership qualities and philanthropic endeavors. They have used their success as a platform to give back to the community and inspire us to follow on their footsteps. Thank you, sir, for gracing us with your presence. Your remarkable journey and accomplishment continue to inspire us all. We are truly honored to have you as a guest of honor at this momentous event. Thank you, sir. विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. We have a spectacular lineup of performances and activities to mark up this momentous day. But before we delve into the festivities, let's take a moment to reflect upon the sacrifices and contributions of our freedom fighters who laid down their lives to secure the freedom we enjoy today. उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव सफूर्ति, नव प्राण भरो, नव सफूर्ति, नव प्राण भरो. Our journey through this celebration continues with an array of cultural performances that showcase the diversity and unity of our nation. Our rich heritage is a reflection of the myriad colors and traditions that make India truly unique. To enhance this feeling, I would like to invite the students for a group song which is mentored by Mr. Dinesh.
song, you have filled our heart with the feeling of patriotism. Thank you very much. Please motivate the students. Put your hands together for them. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। शुक्र हो हमें दे आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
Dance is a dynamic and beautiful way to express emotion, thoughts and stories through the graceful movement of the body. Dance presents cultural and language barriers connecting people worldwide through its powerful and emotive communication. The joy of dancing not only invigorates the body but also uplifts the spirit, fostering a sense of happiness and well-being. Today our heart is full of patriotism to express this feeling through dance. Here comes Yashika of grade 11th and this performance is mentored by Ms. Komal Sareen. Please put your hands together for Yashika. सर पे ये केसरी रंग सजाया, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से सजा भारत अनोखा राग है, सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, ये प्यार का संगीत है, ये शादी राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, न रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। That brings together elements from various corners of our country. Let's celebrate our differences and embrace our shared identity as Indians. Now I would like to welcome the students for a group dance which is mentored by Ms. Jyoti.
सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हम सब के जीवन में और राष्ट्र के विकास की परंपरा में 15 अगस्त बहुत ऐतिहासिक दिन है और इसको हम उस ऐतिहासिक परंपरा के साथ साथ सांस्कृतिक सद्भाव के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ स्कूल प्रशासन का कि मुझे आप लोगों के साथ संवाद करने का अवसर देते हैं, सम्मान देते हैं। और इस अवसर पर जो विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती हैं और दी गई हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत शानदार प्रस्तुति रहती हैं। उनका एक ऐतिहासिक स्तर होता है और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जितनी अच्छी तरह की होती है, उससे आभास होता है कि जिस भी शिक्षक ने, जिस भी बंधु ने उन्हें तैयार कराया है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने उसके लिए मेहनत की है। तो मैं सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखे और उन शिक्षकों को जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की, अपने ओर से सलाम करता हूँ, उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ। चूँकि ऐतिहासिक अवसर है और मुझे मेरी संस्था में भी इसमें हिस्सेदारी लेनी होती है, तो थोड़ी सी मजबूरी रहती है और उस मजबूरी के बीच में समझौता करते हुए बात को आगे बढ़ाना होता है। तो मैं अपनी बात सीधी सी करता हुआ आप लोगों के साथ आज के ऐतिहासिक अवसर की कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस हमें मनाते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। पहली ये कि ऐतिहासिक अवसर क्या है और ये क्यों ऐतिहासिक बना। दूसरा ये कि जिस स्वतंत्रता में हम रह रहे हैं, 76 वर्ष संपन्न हो गए हैं, उस स्वतंत्रता में इसके मायने क्या हैं। और तीसरा ये कि जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो उससे क्या हम मनन करते हैं, क्या हम मंथन करते हैं, और उस मनन मंथन के बाद अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को नए ढंग से आत्मसात करते हैं, ये इसके मायने रहते हैं। क्योंकि ऐतिहासिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, जब उसको सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी अपनी महत्ता रहती है। तो बार बार क्योंकि विषय इसी तरह का होता है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो रिपीट हो जाती हों, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाक्रम में बहुत सी चीज़ों का बताना या उनकी पुनरावृत्ति करना बहुत बार ज़रूरत हो जाती है। तो हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अंग्रेज ताकत, उसका राज था। और वो अंग्रेज इस देश में व्यापारी के रूप में आए थे। मैंने पहले भी बताया है, जस्ट लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दस्तावेज के तहत अंग्रेजों को यहाँ पर व्यापार करने का अवसर मिला था, वो 31 दिसंबर 1600 को वहाँ की महारानी ने लिखा था। और उसकी लाइन अपने आप में साफ है कि हे भारत के शासक को संबोधित है वो, कि हे दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह, मैं इंग्लैंड नामक टापू की मलिका आपको पत्र लिखने का दुस्साहस कर रही हूँ और आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे देश के व्यापारियों को यहाँ पर व्यापार करने की इजाज़त दे दो। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जिसमें पत्र की भाषा से पता चलता है हमारी स्थिति क्या थी और अंग्रेजों की स्थिति क्या थी। ना तो एक जगह रही होगी, ना एक परिप्रेक्ष्य में रही होगी। उनके अपने अरमान रहे होंगे, उनके अपने ख्वाब रहे होंगे, और उन अरमानों और ख्वाबों के बीच में वो अपने आप को आगे बढ़ाए होंगे। वो चाहे हम मंगल पांडे बैरकपुर की बात कर लें या फिर दूसरे जो लोग हैं उनकी बात कर लें या जिनका मैंने पहले नाम लिया है उनकी बात कर लें, निश्चित तौर पर उनके खून में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें थी
कि वो मिट्टी में मिल जाना चाहते थे। क्योंकि मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, शायद 200-300 गज के फासले पर पुराना जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। यहां पर 29 मई 1857 को दिन में 1 बजे डिप्टी कमिश्नर बैडरबर्न को गोली मारी गई, थॉमसन को गोली मारी गई और अंग्रेजी जो है कोष है उसको कब्जे में लेकर 1,70,000 रुपया लूटा गया और अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिटा दिया गया। और हमारे पूर्वजों ने इस बात का एहसास कराया कि ये सत्ता लंबे समय तक चलने वाली नहीं है और इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो एक ओर से हमारे पूर्वजों ने इसके नियंत्रण में लिया, दूसरी ओर से अंग्रेज सत्ता भी इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। तो बहुत लंबी लड़ाई होती है। 5 बार हमारे पूर्वज जीतते हैं और 6 बार अंग्रेज जीतते हैं। तो छठी बार का विवरण है वो 19 अगस्त 1857 का है। नागौरी गेट पर लड़ाई होती है, 438 लोग लड़ते हुए मारे जाते हैं और 235 लोगों की डेड बॉडी इस इलाके में बिखरी हुई मिलती है और 123 लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनको रोड रोलर के नीचे कुचल दिया जाता है। आज के बस स्टैंड और किले के बीच की दीवार के साथ साथ उन लोगों को लिटाया जाता है। यहाँ बार बार मैं जिक्र करता हूँ, जस्ट उसको कुछ सेकंड के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब वो 123 लोग सड़क के ऊपर लिटाए गए तो एक अंग्रेज अधिकारी मिल्डवे उनमें से उठने के लिए कहता है कि तुम अंगूठा लगा दो इस रजिस्टर पर कि हम बगावत का रास्ता छोड़ना चाहते हैं तो वो घर जा सकते हैं। लेकिन मेरे पूर्वज यदि उस स्थिति में भी अंगूठा लगाने तक के लिए तैयार नहीं है, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं और रोड रोलर के नीचे कुचल दिए जाते हैं, तो उनको मालूम है कि गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है। बिल्कुल हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग किस्से मैंने जानने की कोशिश की। गिरधर अहलुवालिया नाम का व्यक्ति पुंडरी में रहने वाला था। उसने कैथल के जो मैकअप है रेजिडेंट, उसका मर्डर किया था। जब उसको रक्षाबंधन वाले दिन पकड़ा गया, गांव को घेर लिया गया, आग लगा दी गई, तो गांव के लोग उसकी मां के पास जाके कहते हैं कि गिरधर को सरकार को सौंप दो, गांव बच सकता है, वरना गांव को आग लगा दी जाएगी। तो मां लगभग 2 किलोमीटर दूर तीर्थ से उसको बुला कर लाती है और कहती है कि बेटा तेरी आज गांव को जरूरत है, यदि बेटा जाता है और गांव और देश बचता है तो मुझे जो है ये समझौता कर लेना चाहिए। और उस लड़के को लाया गया, लगभग 7 किलोमीटर तक रथ के पीछे बांधकर खींचते हुए जब उसके प्राण निकल गए, इससे भी उनका काम नहीं चला और कैथल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर तोप से बांध के उसको उड़ा दिया गया। तो इस तरह के किस्से रोनात में रूपा खाती, नंदाराम जाट और भीड़ीदास बरागी को इसी तरह से तोप से उड़ाया। इसी तरह की प्रक्रिया सोनीपत के पास लिबासपुर में जो है उद्यमी राम और उसके साथियों के साथ हुआ। उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पेड़ के साथ लिबासपुर में उद्यमी राम और उसकी पत्नी को बांध दिया गया। 37वें दिन तड़पते हुए उसके शरीर में गुलमेट ठोक दी गई थी। 37वें दिन तड़पते हुए उद्यमी राम मरा और 23वें दिन तड़पते हुए उसकी पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु हुई। बिल्कुल अलग अलग किस्से, जिस भी तरह के आप देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है, उनके दायरे हैं, बहुत अलग अलग तरह की बात है। उकलाना के पास जो है 42 लोगों को बंदी बनाया गया। उनको तोप से उड़ाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तोप 14 थी, उड़ाने के लिए लोग 42 थे। तो पहले 14 लोग चले गए, क्या दूसरे बाकी 36 सोच रहे होंगे हमारी बारी कब आएगी। फिर उसके बाद अगले 14 को उड़ा दिया गया, फिर 14 के हो गए। लास्ट में 8 जो लोग बचे, उनमें एक बिशन सिंह नाम का लड़का भी था। उम्र कोई 12.5-13 साल के आसपास रही होगी। उसको तोप के साथ रखा गया तो उसकी छाती आ गई, उसका सिर आ गया तोप के आगे। तो अंग्रेज अधिकारी पियर्सन कहता है कि तुझे तो तोप से नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि तेरा तो सिर आ गया है। तो वो लड़का कहता है कि मेरा दादा उड़ा दिया गया है, मेरे पिताजी को आपने तोप से उड़ा दिया गया, मेरे बड़े भाई का नंबर भी आ गया, मेरे साथ इतना अन्याय तो ना करो, मुझे भी तोप से उड़ाओ। वो कहते हैं कैसे उड़ाएं, आपका तो सिर आ गया। तो कहता है मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपकी समस्या का इलाज कर दूंगा। और ऐसी स्थिति में, उस इलाज करने की स्थिति में पास के खेत में गया, भरोटा जो है घास का उठा के लाया,
और तोप के नीचे रख के भरोटे के ऊपर खड़ा होके और छाती तोप के लगा के कहता है कर लो अपना काम, क्योंकि मुझे भी इसी रास्ते पर जाना है। तो शहादत के दायरे, शहादत की स्थितियां, शहादत के किस्से जितने चाहे हम उतने सुना सकते हैं, उतने बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनका मकसद क्या रहता है, उनकी बात क्या रहती है, वो क्यों इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। चाहे गिरधर अहलूवालिया की बात कर लें या फिर उद्यमी राम की बात कर लें या बिशन सिंह की बात कर लें, ये वो किस्से हैं जो हमारे इसी धरती से जुड़े हुए लोगों के हैं जिन्होंने इसमें इस तरह की भूमिका अदा की। और वहां से तो शुरुआत थी, और वहां से शुरुआत करके हम 1947 तक आए। कांग्रेस नामक एक संगठन बना और उस संगठन ने दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि आजादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी जा सकती है, वैचारिकता के दायरे क्या हो सकते हैं। महात्मा गांधी जैसी पर्सनैलिटी ने अपने आप को आगे बढ़ाया, उनके साथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने शहादत की वो ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी दुनिया में जिस भी व्यक्ति को चाहे किसी भी कारण से हो, जब फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी दी जाती है, उसके बीच में जब उसके वेट की बात होती है, किसी का 5 किलो, किसी का 7 किलो, किसी का 15-15 किलो तक वजन डिक्रीज हो जाता है। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों का वजन, भगत सिंह का वजन लगभग 3.25 किलो बढ़ा और सुखदेव का वजन तकरीबन 3 किलो के आसपास, और राजगुरु का वजन तकरीबन 2.25 किलो के आसपास बढ़ा। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में किसी और तरह का घटनाक्रम होता है, हमारे यहाँ किसी और तरह का घटनाक्रम होता है। वो ताकत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहती है कि उनके यहाँ सूरज अस्त नहीं होता, उनके ही नियम के अनुसार इन तीनों जवानों को जो फांसी है वो 24 मार्च को दी जानी थी। और उनको मालूम है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब हो सकता है कि वो 24 तारीख को सिस्टम संभाल नहीं पाएंगे, वो 23 तारीख को उनको फांसी के फंदे पर ले जा सकते हैं। तो ले जाने की स्थिति में रहते हैं और फांसी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया की वो ताकत अपने आप में कितनी खोखली साबित होती है। या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी जो ICS की परीक्षा में 4थे नंबर पर आया हो और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता हो और उस अपॉइंटमेंट लेटर में लाइन नंबर 18 कहती हो कि मैं अंग्रेजी राज के प्रति लॉयल रहूंगा, और वो व्यक्ति सारा कुछ छोड़ के कहता है लाइन कटेगी तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा, अन्यथा नहीं ज्वाइन करूंगा। और अधिकारी समिति जब कहता है कि लाइन नहीं कटेगी तो वो चिट्ठी उनके हाथ में देके और जो खर्चा उनके उसके ट्रेनिंग पे आया था उनको सौंप के और सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आजादी की लड़ाई, इसके किस्से, इसकी बातें जितनी चाहे हम उतने कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो लोग क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि आजादी की स्थितियां यदि होंगी तो हम किस तरह की जिंदगी जिएंगे। अपने आकाश होगा, अपनी जमीन होगी, अपने बांध होंगे, अपनी नदियां होंगी, अपने झरने होंगे, अपने खेत होंगे, अपने खलिहान होंगे, तो हम इस तरह की परिस्थिति में होंगे। और अंततः अंग्रेज मजबूर हुए और उनको 15 अगस्त 1947 को ये जो है इस देश को छोड़ना पड़ा, जिसको हम आज इस रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आजादी की इस लड़ाई की लंबी कहानी के उपरांत हम आजाद हुए, और उस आजादी में निश्चित तौर पर हमें यह चीज देखने को नहीं मिले कि जिस आज यहाँ ओवर ब्रिज बना हुआ है लक्ष्मीबाई चौक के पास से जाते समय, उसके ऊपर एक पट्टी लगी थी और उस पट्टी पे लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जहां लगी है और निगम के ऑफिस तक जाते हैं, मेरे 28 पूर्वज इसलिए जेल में डाल दिए गए क्योंकि वो अंग्रेज नहीं है और इस इलाके में केवल अंग्रेज मूव कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है और उनके साथ क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। और आजादी के बाद जो इन 75-76 सालों में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया, इस आगे बढ़ाने की कड़ी में निश्चित तौर पर इसके दोनों पहलू हैं। यदि हम इसका सकारात्मक पहलू देखते हैं तो वो देश जो कभी ओलपिन तक नहीं बनाता था, आज अर्जुन जैसा टैंक बनाता है, धरती पर बैठकर जो है चांद के लिए यान
भेजने की परिस्थिति में रहता है। जिसके पास अनाज की कमी हुआ करती थी, आज हमारे पास अनाज के भंडार नहीं है। आज हमारी सेना, हमारी जो है वैज्ञानिक क्षमता, दुनिया के सारे के सारे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वो वर्ग जिसको पेशेवर वर्ग कहते हैं, जितनी पूरी दुनिया के लिए देती है उतने हम देते हैं। तो निश्चित तौर पर उपलब्धियां वो सारा कुछ हासिल की हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। A warm and heartfelt thank you is in order as we gather here today to express our gratitude for the memorable Independence Day celebration we have just witnessed. On this remarkable occasion, we join together to honor and commemorate the sacrifices of countless individuals who fought valiantly for the freedom we cherish today. First and foremost, we extend our deepest appreciation to our chief guest, Dr. Mahendra Singh, guest of honor Shri Jagdeep Bhargav ji, and our respected principal, Dr. K.C. Chaturvedi, who graced us with their presence and inspiring words. Your insightful address has reminded us of the importance of unity, patriotism, and the continuous efforts required to uphold the values that our forefathers held dear. Let's carry with us the spirit of unity, patriotism, and commitment to the progress of our nation. Let's pledge to be responsible citizens and contribute to the growth and development of our beloved India. With this, I, Surbhi, take your leave. Thank you for joining us today in celebrating the 77th Independence Day of India. Jai Hind, Jai Bharat.